Today we will be reading your chapter number 6 from Read a book called Gulliver in the Land of Lilliput. I'm sure हम सब ने ये स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी और देखी ज़रूर है. It has been on the TV since ages and पुराने ज़माने में भी हॉलीवुड में ये मूवी बहुत बार बनी है. ओके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ एज एन अलग अलग एक्टर्स के साथ ये मूवी बहुत बार ही बनी है एंड देयर आर वर्जन्स ऑफ इट इन आई थिंक एवरी लैंग्वेज. So yeah, this is in the continuation from chapter number 5, which is called Gulliver Travels. Okay, in that chapter we read that there was a doctor called Lamuel Gulliver, and he sets upon a sail in a ship called Antelope. Then they hit a storm, and he is the only one who is left alive, and somehow he manages to reach the shore. And at the end we see that he is sound asleep. So now let's see what happens when he wakes up. Okay, let's start now. Okay, before you read, did you like the story of Gulliver Travels in the previous chapter? Are you curious to find out what happens next? Read below and find about Gulliver's adventure where he was shipwrecked in a land of people who were only 6 inches tall. Okay, in this thing, these lines, the author is asking you if you enjoyed the last chapter or not, and are you curious about, the fact that he's on a land. What is that land? Okay. Also, there is a word called shipwrecked. Shipwrecked. What do you mean by shipwrecked? Ship का मतलब होता है ship, जहाज. ऑलराइट, जहाज. wreck का मतलब होता है टूट जाना. ओके, टूट जाना, टूट जाना. ऑलराइट, तो शिपव्रेक्ड का मतलब है कि जहाँ पे गुलिवर पहुँचा आफ्टर, ये देखो, लेफ्ट बाय अ शिप डिस्ट्रॉयड एट द सी, यानी कि एक ऐसा शिप जो कि सी में टूट चुका हो. शिप व्रेक होने के बाद गुलिवर एक लैंड पे पहुँचा. ओके, इज इन अ लैंड वेयर पीपल आर ओनली 6 इंचेस टॉल. 6 इंचेस टॉल ही थे वहाँ के लोग. ओके, लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पे. Okay, now Gulliver is starting to tell again. Gulliver is the narrator of the story. As we read in chapter 5 also, here also Gulliver was only narrating, okay? मतलब he is only telling us what happened. I must have slept for about 9 hours, for when I woke up it was daylight. If you remember, he said that it must be about 8 when he looked up to the heaven. He said it is about 8 o'clock in the evening or in the night. And when he woke up in the morning, it was already daylight. So he's imagining, or he's assuming, not imagining, he's assuming that he has already slept for 9 hours. Okay, I tried to get up, but I couldn't move. See here. Here he is telling that when I woke up, it was already daylight. Daylight मतलब दिन निकल चुका था, दिन की रोशनी थी. ठीक है. I tried to get up, but I couldn't move. उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो मूव नहीं कर पाया. couldn't move मतलब कैन नॉट मूव होता है प्रेजेंट टेंस. could नॉट मूव होता है पास्ट टेंस में. और ये could और not को मिला के बनता है couldn't. COULDNT. यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आता है. ठीक है. सो ही couldn't मूव. पहले जब वो उठा तो वो उठ ही नहीं पाया. वो उठ ही नहीं पाया. लेट्स सी वो क्यों नहीं उठ पाया. माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड अप टू pegs fastened into the ground. pegs का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट नेल्स यूज टू होल्ड और टाई द ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड. अगर आपने कभी देखा हो, हम सब ने देखा है रादर, ऐसे करके एक नेल जैसा होता है, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं ताकि आप टेंट लगा सको. ठीक है, टेंट लगाने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर. ऐसे करके एक नेल होता है.
बड़ा सा नेल होता है, इसको हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे रस्सी फंसा के आप इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और इससे आप टेंट को जो है अच्छे से फास्टन कर देते हैं। फास्टन का मतलब होता है फिक्स कर देते हैं। नाउ he saw that his arms and legs were tied to pegs fastened into the ground। उसने देखा कि उसके आर्म्स और लेग्स जो थे वो बंधे हुए थे थ्रू पेग्स। ओके, PEGS, दिस वर्ड सी या पेग्स फास्टेंड। ओके, पेग्स फास्टेंड मतलब जो पेग्स थे वो ज़मीन में गड़े हुए थे, फास्टेंड इनटू द ग्राउंड। दिस स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स वर टाइड thin strong cords were tied across my body and attached to pegs in the ground। पहले तो वो ये बता रहा है कि मैं बंधा हुआ था जब मैं उठा थ्रू पेग्स विच वर फास्टेंड इन द ग्राउंड। देन ही इज टेलिंग अस देयर वर थिन कॉर्ड्स मतलब रोप्स। कॉर्ड का मतलब रस्सी होता है, रोप रस्सी। ओके, दे वर टाइड ऑल अक्रॉस माई बॉडी। अक्रॉस का मतलब होता है क्रिस क्रॉस। ओके, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस। ठीक है, नाउ वही कहता है कि देयर वर थिन रोप्स व्हिच वर टाइड अराउंड अक्रॉस माय बॉडी एंड अटैच्ड टू द पेग्स इन द ग्राउंड एंड अगेन अटैच्ड टू द पेग्स इन द ग्राउंड। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दीज आर पेग्स, दीज आर ऑल पेग्स। ओके, दीज आर कॉल्ड पेग्स, जिससे कि आप एक चीज़ को या रस्सी को ग्राउंड में बांध देते हैं। ठीक है, माई लॉन्ग हेयर वॉज स्प्रेड आउट एंड टाइड डाउन इन द सेम मैनर। उसके बालों को भी उन्होंने पेग से बांधा हुआ था। ओके, थ्रू कॉर्ड्स एंड पेग्स, उन्होंने बालों को भी उसके बांधा हुआ था। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। All I could do was to stare upwards at the sun, blinking to ease the pain on my already strained eyes। He is telling us that मैं क्योंकि बंधा हुआ था, I could not do anything, I could not move myself, all right। So he is saying that all I could do, मतलब जो मैं कर सकता था, was to stare upwards at the sun, कि मैं ऊपर सन को स्टेयर करूँ। स्टेयर मतलब देखना, लगातार देखना। ठीक है, घूरना, रादर स्टेयर का मतलब होता है घूरना। Stare at the sun upwards, blinking to ease the pain। blink मतलब पलकें झपकना। ठीक है, blink का मतलब होता है पलकें झपकना। to ease the pain on my already strained eyes। वो ये कहता है कि I was again and again blinking my eyes to ease the pain। ease मतलब to less, to make it lesser। ease करना मतलब किसी चीज़ को reduce करना, लेस करना, रिड्यूस द पेन ऑन माई ऑलरेडी स्ट्रेन्ड आइज। मेरी आइज़ पहले से ही स्ट्रेन थी, ऊपर से मैं सन की तरफ देखे जा रहा था बिकॉज मैं बंधा हुआ था। ऑलराइट, तो ही इज टेलिंग कि मैं बार बार ब्लिंक कर रहा था ताकि मेरी आइज़ में जो पहले से पेन है वो कम हो जाए। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज अराउंड मी बट आई कुडंट मूव टू फाइंड आउट वॉट वर और वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम। Now he is telling us that he could listen to something, that something he was listening to, but he did not know what was that. And also he could not move or get up to see that what were they or where were they coming from। वो क्योंकि बंधा था इसलिए वो उठ के नहीं देख सकता था कि वो क्या है और कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें। ठीक है, बट उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। ओके, अजीब। ठीक है, अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मोमेंट आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई लेग। इट प्रोग्रेस्ड ओवर माई स्टमक एंड ऑन टू माई चेस्ट, स्टॉपिंग जस्ट बिलो माई चिन। I lowered my eyes downwards as much as I could, hoping to see what sort of insect was crawling on me. Then I suddenly gasped, "Why? It's a human creature barely 6 inches tall." He's telling us that अगले ही moment I felt something on my legs, alive and moving. उसको फील हुआ कि उसके पैर पे कुछ अलाइव है, जिंदा है और चल रहा है उसके पैर पे।
देन वो उसके स्टमक पे आता है, देन ऑन टू माई चेस्ट, वो उसके फिर चेस्ट पे आता है, एंड स्टॉप्स जस्ट बिलो माई चिन, और चिन के पास आके रुक जाता है. आई लोअर्ड माई आईज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड. मैंने अपनी आंखें नीचे करी. एज मच एज आई कुड का मतलब है जितना ज़्यादा मैं कर सकता था. ओके, एज मच मतलब जितना ज़्यादा, एज आई कुड मैं कर सकता था. ओके, तो जितना ज़्यादा वो अपनी आंखें नीचे कर सकता था उसने करके देखने की कोशिश करी कि होपिंग टू सी वॉट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट वॉज क्रॉलिंग ऑन मी. उसने अपनी आंखें नीचे करी जितना वो कर सकता था, इन द होप कि वो देख पाए कि वो क्या इंसेक्ट है जो कि उसके ऊपर चल रहा है. देन आई सडनली गैस्प्ड. गैस्प्ड का मतलब है ब्रीथ हैवीली टू होल्ड वंस ब्रेथ इन सरप्राइज. यू नो, जब एक बहुत एक्सट्रीम सरप्राइज होता है उसको हम गैस्प कहते हैं, जहाँ पे आपकी ब्रेथ रुक जाती है एकदम से. ऑलराइट, उसने गैस्प किया. वाई मतलब ही सेइंग, वाई मतलब एकोलोलिया है. वाई इज हियर एकोलोलिया. एकोलोलिया का मतलब होता है कि जब आप अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड आप उसका ही क्वेश्चन अपने आप रिपीट कर देंगे, तो वो होगा एकोलेलिया. ठीक है. नाउ एकोलेलिया है, इट्स अ ह्यूमन क्रिएचर बेयरली 6 inches टॉल. नाउ वो शॉक्ड था. गैस्प उसने किया, गैस्प किया बिकॉज ऑफ शॉक, क्योंकि उसने जब नीचे देखा तो देयर वॉज अ ह्यूमन एंड ही वॉज ओनली 6 inches टॉल. ही वॉज एज not as big as his whole hand, maybe only his palm. Okay, he was such a small creature. That why he was in a state of shock. This creature had a bow and an arrow in his hand and was followed by 40 more creatures like him. Now this small creature जो कि उसके पैरों पे चला, फिर स्टमक में आया, फिर चिन के पास जाके रुक गया, उसके पास एक बो था और एक एरो. बो मतलब तीर कमान. ठीक है, बो का मतलब होता है कमान, ऐसा करके होता है ना, पहले ज़माने में हम लोग मतलब इंडियंस यूज़ किया करते थे यहाँ पे. फिर इसमें ऐसे करके एरो लगाते हैं और उसको ज़ोर से शूट कर देते हैं. सो एरो इज़ तीर एंड बो इज़ कमान. ठीक है, तीर कमान था उसके पास. एंड वॉज फॉलोड बाय 40 मोर क्रिएचर्स. वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा चिल्ड्रन, उसके अलावा वहाँ पे 40 लोग और थे उसके साथ, वैसे ही सेम 6 inches टॉल. I was so surprised that I let out a frightful roar. All the creatures ran helter-skelter and jumped off my body in terror. अभी क्या हुआ, जैसे कि उसने एकदम से 40 लोगों को देखा ना अपने ऊपर ऐसे क्रॉल करता हुआ, एंड दे वर सो स्मॉल, सो डर के मारे उसकी चीख निकल गई. ओके, सी हियर. I was so surprised that I let out a frightful roar. Frightful मतलब terrible. Terrible here means भयानक. उसने एक भयानक सी चीख मारी. ठीक है, because of the shock that he had got just right now after seeing those 40 small creatures climbing over him. Now all the creatures ran helter-skelter. Helter-skelter मतलब इधर उधर. एंड जम्प्ड ऑफ माई बॉडी इन टेरर. वो उसकी बॉडी पे चढ़े हुए थे, राइट. तो जैसे उसने चिल्लाया ना, तो सारे के सारे जो थे उसकी बॉडी से इधर उधर भाग गए और उतर गए उसकी बॉडी से डर के मारे. टेरर मतलब डर. ओके, फियर. नाउ आफ्टर सम टाइम दे गैदर्ड करेज एंड क्लाइम्ड बैक ऑन टू माई बॉडी. थोड़ी देर बाद उन्होंने करेज गैदर किया 40 पीपल ने, एंड उसकी बॉडी पे दोबारा चढ़ गए. At this time, one of them even clambered onto my chin to get a closer look at me. Clambered का मतलब climbed with difficulty. Okay, clambered means climb with difficulty. One of them clambered onto his chin. वो एक उनमें से जो था ना, वो उसकी चिन पे चढ़ा to
सी कि ये एग्जैक्टली क्या इंसान है जो इतना बड़ा है एंड हमारे शोर पे आके सोया हुआ है, टू सी दैट। ही लेट आउट अ स्क्रीच ऑफ एक्साइटमेंट, हकीना डेगुल। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, स्क्रीच मतलब शाउट, स्क्रीम, शाउट या फिर स्क्रीम। जैसे ही उसे वो देखा, क्लोजर लुक लिया उसका, उसने ज़ोर से चिल्लाया, हेकना देगुल। अब वी विल सी टुमारो व्हाट डज दिस हेकना देगुल मीन्स इफ दे हैव गिवन इन द चैप्टर। दिस मस्ट बी समथिंग इन देयर 6 feet 6-inch tall people language, something in their language it must be. So right now what all do we know is that Gulliver had reached somewhere where there were only 6-inch tall people living on that island. Okay, and they all had tied Gulliver with gasps and cords on the ground. They had even tied his hair. Also, they tried to look closer at him to see what exactly that creature is. Okay, now we'll discuss some exercise for your homework.